Hello class 7, welcome once again in online teaching program. This is Harish Ajad. Students, as we are continuing the second chapter of history, that is New Kings and Kingdoms. And in our last video we had discussed the Palas of Bengal and Bihar and the Rashtrakutas of North India. And in that video we discussed the Danti Varman and the Vas Raja and more powerful kingdoms of the Rashtrakutas. And today's video we are going to discuss about the tripartite struggle. ये जो ट्रिपार्टिट स्ट्रगल है बच्चों, ये हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है और अपर क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while studying. So let's continue. That is on page number 9. Tripartite struggle for Kannauj. Kannauj was once the capital of Harsha. He was a king. To capture it meant the control of the Ganga valley. So there was a struggle among the three powers, the Palas, the Pratiharas and the Rashtrakuta. किसी ज़माने में जो राजा हर्ष की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, और अगर कन्नौज पे कब्जा होने का मतलब कि जो पूरी गंगा की घाटी है, जो गंगा वैली है, जो वहाँ का उपजाऊ इलाका है, उस पर कंट्रोल होना. तो इस पर कंट्रोल करने के लिए तीन जो डायनेस्टीज थी, पहली थी पालास, दूसरी राष्ट्रकूटास और तीसरी थी प्रतिहारास. ये तीनों जो है पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा, ये तीनों डायनेस्टीज आपस में लड़ती रही थी फ्रॉम 780 to 1910 with several rises and falls. और इसमें कई सारे उतार चढ़ाव होते रहे. अब आप ये देखिए कि 910 और 780 यानी 130 साल, लगभग ये लड़ाई 130 साल तक चलती रही. इसके बाद बच्चों हैं हमारे द चाहमनास. ये भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है. There were several branches of the Chahmanas who for about 2 centuries, middle of the 8th century to the end of the 10th century, ruled from small principalities lying in certain parts of Rajasthan around Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Marwar, etc. So especially Chahmanas ruled over the area of Rajasthan, and there were different sections of these Chahmanas. इनके कई sections थे, कई डायनेस्टीज थी जिन्होंने डिफरेंट इलाकों पर राज किया. Some of their important families ruled in Jalore, Nadula, Dholpur, etc. But mostly they acted as the feudatories of the Pratiharas, Parmas and Chalukyas. ये एक्चुअली में जो है प्रतिहारा, परमास और चालुक्यास के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या ये कह सकती है कि सामंतवादी व्यवस्था के ये लोग थे. ये इनके रिप्रेजेंटेशन में काम करते थे. जैसे प्रतिहारा हो गए, परमास हो गए और चालुक्यास हो गए, ये इनको रिप्रेजेंट करते थे. जैसे मान लिए कोई टेरिटरी है, अगर चालुक्यास ने वो टेरिटरी जीती है तो वो क्या करते थे, इन चाहमनास को उसका एक गवर्नर नियुक्त करते थे और वो उनके बिहाफ पे इस कंट्री को या उस देश को या उस राज्य को गवर्न करते थे. Some of their rulers did establish their independent kingdoms, though they existed for a short period. Some of them even won great laurels in the battlefield. They were great patterns of art and literature. They built beautiful temples. हालांकि जनरल अपॉइंट होने के बाद या गवर्नर अपॉइंट होने के बावजूद भी जो चाहमनास से कुछ रूलर्स थे, उन्होंने अपनी खुद की टेरिटरी बनाई, अपने खुद के राज्य बनाए और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया. और ये आर्ट और आर्किटेक्चर के काफ़ी लवर्स थे, यानी कि ये कला प्रेमी थे और स्थापत्य कला को भी इन्होंने बड़े अच्छे से बनाया. One of these rulers, Durlabh Raja, is said to have defeated the king of Gauda and to have reached Ganga Sagar in the course of his conquest. इनमें से एक थे दुर्लभ राजा, इन्होंने गौड़ा को हराया था और गंगा सागर तक पहुंच गए थे. Another ruler, Govind Raja, successfully repulsed the attack of Sultan of Sindh. The Chamana ruler, Vakpita Raja, built a temple of Shiva at Pushkara. Another ruler, Vigrah Raja II, who ruled in 1973, built a temple of goddess at the Bhrukacha on the bank of Narmada. This ruler was also a great warrior who invaded Gujarat and even defeated the Chalukya ruler Mularaj. तो ये कुछ चाहमना राजाओं के डिस्क्रिप्शन थे जिन्होंने कई जगहों पर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन इलाकों को जीता. In the closing years of the 10th century, the kingdom of Chahmanas extended at least of the Cyber in the north and the town of Jaipur in the east.
पुष्कर नियर अजमेर इन द साउथ एंड परबसर इन जोधपुर इन द वेस्ट। तो मोस्टली ये जो लोग थे ये राजस्थान के आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे। इनमें से कुछ जो है चालुक्यास, प्रतिहारास और पालास के गवर्नर रह चुके हैं। बाकी जो कुछ राजाओं के नाम अभी बताए गए, जैसे दुर्लभ राजा है, भक्तिपा राजा है, इन्होंने जो है, और विग्रह राजा है सेकंड है, इन्होंने जो है अपने खुद के जो है राज्य बनाए और शासन किया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों द राजपूत्स। द राजपूत्स after the death of Harsha AD 647, chaos and anarchy prevailed in the country. The unity of Harsha empire disappeared. His vast empire fell into pieces and some small independent states sprang up. राजा हर्ष की मृत्यु के बाद एक चाओस यानी कि एक अशांति की स्थिति हुई और जो उसका राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता चला गया। Most of these states were ruled over by the Rajputs who were continually at war with one another, so a large number of states were being formed, dissolved and formed again. और राजा हर्ष की मृत्यु के बाद जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और राजपूत जो इन राज्यों के मालिक हुआ करते थे या इन प्रोविंसेस के मालिक हुआ करते थे वो हमेशा आपस में लड़ते थे। तो इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य बनते गए, मिटते गए और बनते गए। द पीरियड from the death of the Harsha to the conquest of northern India by the Muslims towards the end of the 12th century AD 647 to 1192 is called the Rajput period. जो 647 से लेकर के 1192 तक का जो पीरियड है बच्चों, इसे राजपूत पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो राजपूत थे वो काफी सक्रिय रहे, वो आपस में ही लड़ते रहे और एक दूसरे पर सुपरमेसी जताने की कोशिश करते रहे। इसके बाद से द टर्किश इन्वेशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द मुस्लिम टू एंटर इंडिया थ्रू सिंध हैड फेल्ड मिजरेबली। इफ it were the Turks who established themselves in India in the 12th and 13th centuries AD. The Turks were in reality the feudatories of the Khalifas, but when the latter became weak, they started assuming independent status. Soon their eyes fell on India, which had disintegrated into a small state. अब जब तुर्किश इन्वेशन होता है तो ये मोस्टली सिंध से आए थे और ये उस समय जो खलीफा होते थे उनके ये मैनेजर होते थे या आप ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद जब इन्होंने एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद जब इनको वहीं रहने लगे और जब इनको ये मालूम हुआ कि जो खलीफा जो दूर देश में बैठा हुआ है, जो अफगानिस्तान में है या अरब में है या और तुर्की में है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये हिंदुस्तान जो कि उस समय टुकड़ों में बटा होता है उस पर इनकी निगाह गड़ती है और ये अपने आप को वहाँ का सुल्तान घोषित कर देते हैं। और इस तरीके से बच्चों हिंदुस्तान में जो है तुर्कों का आक्रमण होता है। ये होता है 12th और 13th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 1200 और 1300 के बीच में हिंदुस्तान में तुर्क आते हैं और इस सिंध के रास्ते होकर के आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, and in our upcoming videos students will cover the remaining portion of this chapter, and in today's SW you have to write about the Rajputs and their period। आपको राजपूतों के बारे में लिखना है कि राजपूत इंडिया के किस भाग में थे, क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो किस चीज़ में कैसे क्या करते थे, कब उनका उदय हुआ और किस तरीके से वो आपस में लड़ते करते थे और किस पीरियड को राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक एंड टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।